Thank you, Mr. Ezaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Welcome everyone. Sir, Hmm. sir, Assalamu alaikum. जी जी वालेकुम Sir, अस्सलाम. let me take start for your introduction. Okay. Assalamu alaikum and good evening to all of you. A warm welcome to the today's session. Thank you for joining us. As you know that success comes to those who are patient and work hard for it, and never give up in your life because never know that what tomorrow will bring. My अवेलेबल name कर is रहा. Mahanur Wahid and I am the General Secretary of Social Welfare Society Ockham. Today, we are presenting the topic how to secure end users, and which is going to be presented by our honorable guest speaker, Sir Kashif Ali. Now, I am going to give a brief introduction of Sir. He is a Pakistan first ever VMware Expert 2021 and has a big name in the field of information technology. Sir Kashif Ali, a very well-known personality. He is working as an inside solution architect at a top-most global IT solution provider known as Zones. He has more than 30 plus accreditation plus certification in the field of information technology. He is a member of research committee UET Peshawar as well as he is working as IT trainer at Colinks Peshawar. He is expert in many fields of information technology like Microsoft, Cisco, VMware, cybersecurity, and cloud technology. Thank you, Manur, Dear, for. dear participants, if you have any question during the presentation, please type them in the question box in the Zoom control panel. We are delighted to have you here, sir, to participate in the session hosted by Occam Social Welfare Society. Thanks for joining us. Now, please, you can take a start. Thank you once again for such a brief introduction. Uh, मुझे can I am I able to share my screen? Looks like you need to make me host. Yes, sir, I am making you host. Okay. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Um, Sir, I want to record this video. Uh-huh. Is this possible for me to record it for me? Yep, I just start the recording session at my end. So once the session is completed, I will share the link with you and you can forward it to the participants. Thank you. No problem. Looks like there is some sort of security at your end. Let me uh, disable the waiting option. Okay. Guys, already Manur ने मेरी introduction की है, so I'm going to skip this slide and I will focus on the session agenda. Today we will discuss why end user security training is important. We will also discuss what are the steps to secure Windows user. Basically end users जो हैं हम सब हैं, मतलब if you are using cell phone, if you are using laptop, if you are using any other digital device or smartphone etc, so you are known as an end user. और end user की security जो है वो बहुत ज़्यादा matter करती है. Even if mostly I am guessing कि यहाँ पे जो हैं मेरे सामने जो participant है वो mostly students ही होंगे, but some of you can be working in organization, शायद कोई production environment में काम करता हो. तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में इवन जब कोई न्यू एम्प्लॉई जो है वो आता है ऑफिस में तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है एंड यूज़र सिक्योरिटी के हवाले से कि हाउ टू यूज़ द एंड यूज़र डिवाइस. एंड यूज़र डिवाइस मींस लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आज का जो सेशन ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का ही एक फील्ड है और एक मतलब एक टॉपिक है. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब वी कैन नॉट कवर इट इन 1 आवर, बट आज का जो सेशन है वो मैंने बिल्कुल सैम्पल रखा है ताकि जो लोग अटेंड करें उनको फ़ायदा पहुंचे. मतलब इफ़ वी
अगर हम हाई लेवल हर एक पॉइंट को डिस्कस करें तो फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने कुछ इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स भी जो है वो इंक्लूड की है, तो आई विल आल्सो बी गिविंग सम डेमोज। यहाँ पे कुछ क्विज़ेस भी होंगे, कुछ प्रैक्टिकल डिस्कशंस भी होंगी, और जो आज का सेशन जो फोकस हमारा होगा वो बेसिकली विंडोज़ अप यूज़र्स के बारे में होगा। तो आई बिलीव most of you would be using Windows, right? Can someone acknowledge कि आप लोग कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं? Yes, we are using Windows. Okay. Windows 10, sir. Okay, perfect. Mr. Adnan Malik, he is using Kali. So जो लोग काली यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग उनसे बच के रहिएगा। अच्छा, दैट्स गुड। सो आज के सेशन में हमने फिर विंडोज़ यूज़र्स के बाद हमने सिक्योरिंग गूगल क्रोम ब्राउज़र मोस्ट ऑफ़ यू विल बी यूजिंग, कीलॉगर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फिशिंग अटैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ में एक क्विज़ भी होगा, सो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट? सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल सेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सेशन के बाद आप लोग जो है आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो भी मिले। और ये जो सेशन है ये बेसिकली इट्स नॉट ओनली फॉर आईटी स्टूडेंट्स, ये इट्स फॉर जनरल पर्पस। जो भी बंदा हो, किसी भी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ हो और वो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वगैरह यूज़ करता हो, तो ये सेशन जो है उन लोगों के लिए है। So it's not only for computer science student. I cannot focus on chats. So if I think Manur, if you can monitor the chat, and if there is something for me, so please unmute yourself and ask me. So and I will reply. So मैं chat जो है मैं इसको नहीं देख रहा। Are you guys able to see my Windows machine? आपको मेरी विंडो मशीन नज़र आ रही है? Yes, sir. We can. ओके, परफेक्ट। तो मैं ख़ुद कंफ्यूज भी हूँ कि कहाँ से स्टार्ट लूँ, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमने आज कवर करने हैं, लेकिन फिर भी हम फोकस करेंगे कि जितनी भी हम इसको सैंपल कर सके तो वो हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऑलरेडी आप लोगों ने बताया है कि विंडोज़ के बारे में किस किस को आइडिया है, विंडोज़ यूज़र्स के बारे में? आप लोग इस यहाँ पे कोई इस तरह का बंदा है जिसने कभी विंडो इंस्टॉलेशन खुद की हो? कैन एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. We did it. ओके। जब आप विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं, स्पेशली विंडोज़ 10, राइट, तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या लोकल अकाउंट का मैसेज आता है आपको? कभी आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? After installing, sir, आता है। जी, खैर आराम से बोले। जी जनाब। तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर आपने देखा होगा, हमें कुछ यूज़र्स विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और लोकल अकाउंट के बारे में जो है एक मैसेज आता है, राइट? सो आई डोंट वांट टू डिस्कस दोज थिंग्स, बट मैं फ़ोकस करूँगा यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट के हवाले से। तो यूज़र मैनेजमेंट के बारे में किसी को आइडिया है, या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के बारे में किसी को आइडिया है? अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मेरी एक विंडोज़ मशीन है, राइट? और सर ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट। यहाँ पे आप देखें, ये मेरी एक मशीन है और यहाँ पे ये मेरा यूज़र अकाउंट है, राइट? ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मैंने इस यूज़र अकाउंट को बनाया है और इस पे मैंने एक पासवर्ड भी लगाया है। तो सबसे पहले तो आपको ये ज़रूरी है कि आपका जो मशीन है उस पर आपने स्ट्रांग पासवर्ड लगाना है।
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन कि आपका पासवर्ड जो है वो 3 केस होना चाहिए, इट्स नॉट ओनली ABC 1 2 3। पासवर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो ये एक्टिविटी आपने ज़रूर करनी है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम हॉस्टल में रहते हैं या फिर हमारी जॉइंट फैमिली होती है, तो वहाँ पे जो हमारा लैपटॉप वगैरह होता है, इट्स नॉट ओनली, लेट मी म्यूट ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स। ओके, आई जस्ट म्यूट यू ऑल। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे देखें, इस मशीन पे मैंने एज अ काशिफ यूज़र लॉगिन लिया, और ये जो यूज़र है इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी हैं। मतलब इफ़ आई वांट टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर ऑन दिस मशीन आई कैन इंस्टॉल, या अगर मैंने कुछ चेंजेस करनी है सिस्टम टाइम में, और ये मैं कर सकता हूँ। अक्सर हमारे पास मसला ये होता है कि हमारी मशीन में हमारा पर्सनल डेटा भी होता है साथ में। सपोज़ मैंने ई ड्राइव में कुछ पिक्चर्स जो है वो रखी है, और अगर मेरा एक रूममेट है या फिर मेरा कोई कज़न है घर में, और ही आल्सो यूजिंग दिस लैपटॉप, तो आपके जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो उस यूज़र से सिक्योर नहीं है। रीज़न इज़ क्योंकि उसके पास भी सेम इसी यूज़र अकाउंट का पासवर्ड होगा, और वो भी इसी अकाउंट पे लॉगिन होगा, और वो सिर्फ अपना मतलब जो ऑनलाइन वर्किंग या कोई और नहीं करेगा, ही कैन आल्सो एक्सेस दिस पिक्चर। मतलब यू कैन नॉट कीप योर पर्सनल फाइल्स इन योर पर्सनल मशीन। सो टू मेक दिस मशीन सिक्योर, अगर आप चाहते हैं कि हम इस मशीन को सिक्योर करें, कोई दूसरा बंदा अगर वो यूज़ करे तो उसको आपने लॉगिन देनी है, लेकिन आपने उसको लिमिटेड लॉगिन देनी है। फॉर दिस पर्पज़ आप लोगों ने अपने मशीन में, लैपटॉप में एक दूसरा यूज़र भी बनाना है, जिसको हम स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट जो है वो कह सकते हैं। मेरी कुछ ट्रेनिंग्स भी हैं, मैं महानूर या कासिम के साथ वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूज़र, उसकी डीप डिस्कशन पे मैं अभी नहीं जाता, क्योंकि इस सेशन को हमने सिर्फ सिक्योरिटी स्पेसिफिक ही रखना है। तो लेट मी तो आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि अपने मशीन में एक यूज़र अकाउंट बनाना है, राइट? सो आई एम गोइंग टू क्रिएट। ओके, तो एक यूज़र अकाउंट आप, अगर आपके पास मशीन है, लैपटॉप है, और आपके पास उसमें सिंगल यूज़र है, तो आई एम सजेस्टिंग यू गाइस कि यहाँ पे जाएं और यहाँ पे एक न्यू यूज़र बनाएं, और उसको दे देखें ये आपका गेस्ट यूज़र एक अकाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पासवर्ड 1 2 3। इट्स अप टू यू गाइस कि आप उस पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं या नहीं। और यहाँ पे आप इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में देख भी सकते हैं कि ये यूज़र एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का मेंबर तो नहीं है, तो ये सिर्फ यूज़र्स ग्रुप का मेंबर है। तो जो यूज़र अकाउंट यूज़र्स ग्रुप का मेंबर होगा उसके पास लिमिटेड राइट्स होंगी। लिमिटेड राइट्स से क्या मतलब है, लेट मी शो यू। मैं उसी यूज़र पे, तो एक ही मशीन है आपका, तो अगर आप ख़ुद यूज़ करते हैं तो आप अपने अकाउंट से लॉगिन लें, और आपका कोई कज़न वगैरह हो तो उसको इस यूज़र अकाउंट से एक्सेस दें। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स जो है वो उसमें गेस्ट लॉगिन की फैसिलिटी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। कुछ आइडिया है आप लोगों को? कुछ मोबाइल फ़ोन? जी सर बिल्कुल, जी सर बिल्कुल है, हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अक्सर हमारे, जब मैं ख़ुद पर्सनली जब गांव जाता हूँ तो मुझसे कोई कहता है कि मोबाइल नो मुझे कॉल करनी है, तो आई पर्सनली अवॉइड टू गिव माई फ़ोन टू देम इवन इफ दे आर ट्रस्टफुल पीपल टू मी, बट स्टिल आई डोंट गिव माई फ़ोन कि कोई उससे कॉल करें, क्योंकि कॉल करने के बाद शायद वो मेरी गैलरी में भी जा सकते हैं, मेरे मैसेजेस भी देख सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पज़ आई थिंक कुछ मोबाइल कंपनीज़ ने अपने मोबाइल फ़ोन में ये फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस की है गेस्ट लॉगिन की। तो इसी तरह आपके लैपटॉप में भी
एक यूज़र होना चाहिए कि जो भी अगर आपके अलावा कोई और बंदा इसको यूज़ कर सके तो वो आपका पर्सनल डेटा जो है वो यूज़ ना कर सके। तो अभी ये कोई थोड़ा सा टाइम लेगा, सो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एक दूसरा यूज़र मैंने बनाया और उसी यूज़र ने यहाँ पे लॉगिन ले लिया। कौन सा यूज़र है? गेस्ट यूज़र है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो गेस्ट यूज़र आपने डेस्कटॉप पे कुछ डेटा रखा हो तो ये देखें यहाँ पे, ही कैन नॉट एक्सेस योर डेस्कटॉप डेटा, वो आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो आपके मशीन का टाइम चेंज करना चाहता हो या कोई दूसरी चेंजेस करना चाहता हो तो ही वॉन्ट बी एबल टू डू दिस। सो इसी तरह आप अपने मशीन को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, आपके ई ड्राइव में कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, तो जो गेस्ट यूज़र है, जो स्टैंडर्ड यूज़र है, वो स्टिल ही कैन एक्सेस योर पिक्चर्स, मूवीज़ एंड डेटा। तो आपने इस डेटा को किस तरह सिक्योर करना है, सो लेट मी शो यू। जब भी आप एक तो आपके पास एक फ़ीचर है बिट लॉकर। डू यू गाइस नो बिट लॉकर? किसी ने नो सर, प्लीज एक्सप्लेन इट। ओके, बिट लॉकर बेसिकली विंडोज़ 10 प्रो में पहले तो आपने अच्छा चले, मैं इंट्रोडक्शन में ये भी दिखाने वाला था कि आप लोगों ने ये इस पेज को लाइक करना है, क्योंकि दे गाइस they are arranging some other session as well, so you can follow them and you can get update from their activities. पहले तो अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आपने विंडोज़ 10 एडिशंस के बारे में अपनी मतलब फ्री टाइम में इसको सर्च करें कि विंडोज़ की कौन कौन सी एडिशंस अवेलेबल हैं। फिर उसमें कुछ फ़ीचर्स होते हैं, तो बिट लॉकर जो है वो एक फ़ीचर है, राइट। अगर मैं यहाँ गूगल कर लूँ कि व्हाट इज़ बिट लॉकर, तो वो आपको बताएगा कि ये बेसिकली इसके थ्रू आप अपने सी ड्राइव को, डी ड्राइव को या ई ड्राइव को आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं और उस पर एक पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इवन अगर आपका पासवर्ड भी किसी के पास हो और आपने अपने ई ड्राइव पे बिट लॉकर इनेबल की हो, तो वो बंदा जो है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन वो आपका डेटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप लोगों को रैंसमवेयर अटैक के बारे में पता है? नो सर, नो सर नहीं पता। यस सर। अच्छा, तो जिसने यस सर कहा शायद वो इसका शिकार हुआ हो। इज इट ट्रू? नो सर, हैकर हमारे कंप्यूटर पर जब अटैक करता है वो हमारे डेटा को एनक्रिप्ट करता है और फिर डिमांड में पैसे मांगता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे आज के सेशन में एक हैकर भी मौजूद है। राइट, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई कैन नॉट डिस्क्लोज हिज और हर नेम। तो ये फिर आप देखें, फिर सेशन के बाद आपको अंदाज। तो आज मैंने इसको भी बुलाया है कि मतलब है हमारे सेशन में। तो बैकएंड पे ही इज सपोर्टिंग एक्चुअली। हाँ, मैं नहीं, आप खुद तो नहीं है? नहीं मैं खुद नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ट्रेनर एंड ये नहीं। रैंसमवेयर एक अटैक है। अक्सर ये अटैक किस तरह मतलब होता है, तो सॉरी, लेट मी म्यूट यू गाइस, श्योर। अच्छा, माशाल्लाह वी हैव सम जाना पहचाना लोग भी हमारे सेशन में मौजूद हैं। अच्छा, तो रैंसमवेयर अटैक जो है वो बेसिकली हैकर आपको किसी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में या कोई लिंक के फॉर्म में आपको एक
लिंक भेजता है, जब आप उसको क्लिक करते हैं एज अ विक्टिम तो आपके जितने भी लैपटॉप के जो फाइल्स हैं वो एनक्रिप्ट हो जाते हैं। फिर वो आपसे डिमांड करता है, डिपेंड्स ऑन योर डाटा। तो एक तो मेरी पर्सनली मैं आपको बता दूं कि मैं अपने डाटा के साथ क्या करता हूं। जितना भी मेरे इस लैपटॉप में डाटा पड़ा है उस सब का जो मतलब इस डाटा का जो बैकअप है वो मेरे पास ऑफलाइन भी पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या किसी और फॉर्म में मेरे पास पड़ा है। तो सपोज़ अगर कोई हैकर मेरे लैपटॉप पे अटैक भी कर दे और मेरा डाटा एनक्रिप्ट भी हो जाए तो आई विल नॉट गिव एनी पेनी टू हिम। मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करके वो सारा डाटा जो है जो मेरे पास ऑफलाइन पड़ा हुआ है वो मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपना डाटा जो है उसकी बैकअप जो है वो रेगुलरली आप जो है वो लिया करें। तो एक सेशन इसमें यह भी है कि मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपने डाटा का जो बैकअप है वो रेगुलरली लेना है। तो विंडोज़ 10 में आपके पास एक टाइम भी आप सेट कर सकते हैं कुछ फ़ोल्डर्स पे, कि सपोज़ ये आपका फ़ोल्डर है और इस पर आप टाइम लगा दें कि आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर आपने इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करना है। फिर अगर फ्यूचर में कोई हैकर अटैक भी कर दे तो आपका डेटा जो है वो नेटवर्क में या किसी और जगह में वो वहाँ पे पड़ा होगा। तो सबसे पहले तो मैं आज के सेशन में स्टार्ट लूँगा NTFS परमिशंस के बारे में। पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों को FAT32 और NTFS के बारे में कुछ आइडिया है? आप लोग विंडोज़ फाइल सिस्टम, अगर इफ़ यू आर नॉट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, अगर आप लोग IT के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 10 जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फाइल सिस्टम होता है वो NTFS होता है। बिफोर विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 से पहले विंडोज़ XP में FAT32 पे भी ये आपकी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट होती थी। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने NTFS जो है वो बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया है। इट्स बेसिकली अ न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो पहले अगर आपने अपने मशीन को सिक्योर करना है तो मेक श्योर कि आपका जितने भी ड्राइव्स हैं आपके वो NTFS में फॉर्मेटेड होने चाहिए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ाइल सिस्टम जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ाइल सिस्टम NTFS है। तो जब आपका फ़ाइल सिस्टम NTFS होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इवन आपके पास BitLocker की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। इवन आप सिक्योरिटी में जाके, एडिट में जाके, यहाँ से वो जो यूज़र हमने बनाया था, गेस्ट यूज़र मेरे ख्याल में मैंने बनाया था, लेट मी फाइंड दैट यूज़र, गेस्ट यूज़र, गेस्ट यूज़र के नाम से मैंने एक यूज़र बनाया था और इस गेस्ट यूज़र पे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा D ड्राइव या E ड्राइव जो है वो एक्सेस ना कर सके। तो सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिनाई किया और यहाँ से आप सिक्योरिटी परमिशन भी लगा सकते हैं अगर आपका ड्राइव जो है वो NTFS फॉर्मेटेड हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इवन ये आपका पर्सनल मशीन है और आपका रूममेट या फिर आपका मतलब कज़न वगैरह वो भी इसी लैपटॉप को यूज़ कर रहा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं लोगों की, बच्चों की। तो मे बी हर घर में तो हर के पास लैपटॉप नहीं हो सकता, मे बी आप लोगों के पास सिर्फ हो, किड्स के पास ना हो। तो ये देखिए इवन ये लैपटॉप है एंड स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेस योर E ड्राइव। वो बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है, अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकता है, बट आपका पर्सनल डेटा यूज़ नहीं कर सकता। तो आप E ड्राइव पे आप इस तरह NTFS फॉर्मेशंस जो है वो लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं E ड्राइव वो एक्सेस कर सकें लेकिन E ड्राइव में जो पिक्चर्स फ़ोल्डर है वो एक्सेस ना करे, बाकी डेटा का फ़ोल्डर या कोई और फोल्डर जो है उसको एक्सेस हो, तो उस केस में
आप स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे भी वो परमिशन आप लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी हर एक टॉपिक को कवर कर लूँ ताकि आप लोगों को फिर फ़ायदा हो। तो लेट मी शो यू। यहाँ पे देखिए आप डेटा है, मूवीज़ हैं, पिक्चर्स हैं। तो अगर आपने देखना है कि इस फोल्डर पे किन लोगों को एक्सेस है, तो सिंपली आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके सिक्योरिटी टैब में आप देख सकते हैं कि जो यूज़र्स ग्रुप के मेंबर हैं दे कैन स्टिल एबल टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो यहाँ पे एडिट सेटिंग में जाके आप जो आपका यूज़र होगा, गेस्ट यूज़र, उसको आप इस तरह ऐड कर सकते हैं और उसको डिनाई कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू। अच्छा, वैसे चैट को मैं नहीं देख रहा, तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन स्पीक अप। ओके जनाब, सो यहाँ पे आप देखें ई ड्राइव एक यूज़र है, मतलब आपका कज़न है या आपका रूममेट है, उसने आपके मशीन में लॉगिन लिया, वो आपका ये फ़ोल्डर आपने उसको उसकी एक्सेस दी है, लेकिन इफ़ ही वांट टू ओपन दिस फोल्डर ही कैन नॉट ओपन इट। वो ये फ़ोल्डर एक्सेस नहीं कर सकता। उस मतलब ये आपका पासवर्ड जब देगा तो स्टिल ही वुड बी एबल टू एक्सेस दिस फोल्डर। अगर वो गुस्से में आके उसको डिलीट करना भी चाहे तो ही वॉन्ट बी एबल टू डिलीट इट, वो कॉपी भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह आप एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे आप परमिशंस जो है वो लगा सकते हैं। इज़ इट क्लियर? समझ आ रही है आप लोगों को? सर अगर ये फोल्डर वाला रिपीट करे तो काइंडली, ये एक फोल्डर पे कैसे लगाना है? अच्छा, इसको जरा रिपीट करें। सही है। मेक श्योर कि आपके पास कंप्यूटर में 2 यूज़र अकाउंट होने चाहिए। एक आपका पर्सनल जिसको एडमिन राइट्स होनी चाहिए, और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड यूज़र होना चाहिए। तो फिर इसी तरह एक फ़ोल्डर पे आप जब राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, सिक्योरिटी टैब में एडिट की सेटिंग पे जाके यहाँ पे आपने जिस यूज़र पे आपने परमिशन लगानी है उस यूज़र का नाम और उस यूज़र को सेलेक्ट करके डिनाई ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन रिस्ट्रिक्ट अ यूज़र टू एक्सेस दिस फोल्डर। आप बिटलॉकर भी लगा सकते हैं। बिटलॉकर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि सिंपली आप किसी ड्राइव पे राइट क्लिक कर लें, टर्न ऑन बिटलॉकर, और यहाँ पे आप कोई पासवर्ड लगा लें, ABCD 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4 और यू कैन अप्लाई पासवर्ड। तो यहाँ पे एक रिकवरी की भी है, तो वो रिकवरी की आप किसी सेफ जगह पे स्टोर करें। सो दिस इज़ आवर टेस्ट एनवायरनमेंट। सो मैं इस की को यहाँ लोकली ही डेस्कटॉप वगैरह पे स्टोर करता हूँ, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपने यहाँ पे की स्टोर नहीं करनी, आपने किसी ख़ास जगह पे स्टोर करनी है। सो यहाँ पे मैंने बिटलॉकर जो है वो इनेबल किया। तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सिंपली यू नीड टू रिस्टार्ट योर मशीन। जब आप अपना मशीन रिस्टार्ट करेंगे और अपने लैपटॉप पे लॉगिन लेंगे तो आपका ई ड्राइव जो है उस पर एक पासवर्ड लगा होगा। तो इसी तरह आप जो है वो अपनी डेटा जो है वो सिक्योर कर सकते हैं थ्रू बिटलॉकर। एक तो आप लोगों के पास ये मैं भी आपको बता दूं कि इवन अगर आपके लैपटॉप पे पासवर्ड भी हो, राइट, यहाँ पे आपने पासवर्ड भी लगाया हो और जो भी आपने किया हो, लेकिन इफ़ समवन कैन फिज़िकली टच योर डिवाइस, तो फिर भी आपका लैपटॉप जो है वो सिक्योर नहीं है, राइट। तो फिज़िकल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। अगर आप अपने रूम से बाहर जाते हो तो सबसे पहले तो अपना लैपटॉप अपने कबर्ड में
उसको लॉक करें। क्योंकि इवन अगर आप यही सोच रहे हैं कि मैंने अपने लैपटॉप पे पासवर्ड लगाया हूँ, तो बेशक आप अपना लैपटॉप पे पासवर्ड भी लगाएं और आप छोड़ दें, और विद इन 1 आवर, विद इन 30 मिनट्स और विद इन 15 मिनट्स में आपके लैपटॉप पे लॉगिन हो के आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे आपके लैपटॉप पे मैंने लॉगिन भी लिया है, और जो आपका डेटा है वो आई कैन ट्रांसफ़र इट टू माय एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, या फिर यूएसबी को मैं ट्रांसफ़र करके आपको फिर दिखा सकता हूँ कि ये देखिए आपका डेटा है। आपको फील भी नहीं होगा कि मेरे लैपटॉप को किसी ने टच किया हो। और उसके लिए मैं आपको एक बता भी दूँ, मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर हैं हायरन बूट के नाम से, राइट। तो अभी हमारा सेशन इतना लेंथी सेशन नहीं है कि मैं हायरन बूट की डेमो दे दूं आपको। और इफ़ यू ये हायरन बूट के थ्रू आप एक किसी मशीन का पासवर्ड जो है वो आप इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हैकिंग की सेशन ये नहीं है। सर जी जी सर, ये हायरन बूट जो है ना, ये दोनों मशीन पे अवेलेबल होना चाहिए, या जिस पे मतलब जिसका वो पासवर्ड आप मतलब मालूम करना चाहते हैं वही वाला? बेसिकली ये आप लोग तो इसको पासवर्ड ब्रेकिंग कहेंगे, हम लोग इसको पासवर्ड रिकवरी कहते हैं। बेसिकली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किसी मशीन का पासवर्ड भूल जाए तो आपने किस तरह रिकवर करना है। तो नॉर्मल जो लोग हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो उसको पासवर्ड ब्रेकिंग कहते हैं। तो हायरन बूट के थ्रू जिस मशीन का पासवर्ड आपसे भूल गया हो, वो हायरन बूट आप किसी यूएसबी पे आप वो कॉपी कर लें, उसी मशीन के साथ अटैच कर लें, और सिंपली जो है पासवर्ड आप रिकवर कर सकते हैं, या इन योर लैंग्वेज यू कैन ब्रेक इट। अच्छा, आता हूँ हायरन बूट पे। पहले ये बैठला कर देखें आप, ये ई ड्राइव पे पासवर्ड लगा है। तो मैंने अपने यूज़र अकाउंट पे भी मेरा पासवर्ड है, और यहाँ पे ई ड्राइव को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ जब तक मैंने पासवर्ड ना दिया हो आई कैन नॉट एक्सेस दिस ई ड्राइव। तो इसी तरह बिटलाकर के थ्रू भी आप सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर आप अभी टेंशन में हैं कि हमारे जो मशीन है वो तो सिक्योर नहीं है, कि हायरन बूट या किसी और तरीके से आप पासवर्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है, तो उसका हल ये है कि आप अपने जो बूट ऑप्शन है आपके लैपटॉप में, बायोस जिसको कहते हैं, तो उस पर भी आप पासवर्ड लगाए तो आप जो हैकर है उसको एक टफ़ टाइम आप दे सकते हैं। मतलब नॉर्मली अगर वो 30 या 10 मिनट्स में आपका पासवर्ड जो है वो ब्रेक करेगा, तो जब आप बायोस की पासवर्ड लगाएंगे तो मे बी वो 1 आवर ले ले, 2 आवर ले ले, 3 आवर ले ले, तो तब तक आप जो है वो अपने लैपटॉप के पास तो पहुँचे होंगे। तो इसी तरह आप अपने मशीन को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। एनी क्वेश्चन गाइस? सर हर दफ़ा हमें पासवर्ड देना पड़ेगा जब हम ई को एक्सेस करते हैं? जब अभी मैंने सिस्टम रिस्टार्ट किया, तो अगर मैं इसको ओपन करूं, आई थिंक ये देखें, ये बस बिल्कुल ऑन हो गया। तो जब तक मेरा मशीन ऑन है या फिर मेरा सेशन ऑन है तो आई डोंट नीड टू गिव पासवर्ड। और मेरे ख़्याल में कुछ स्टेप्स होंगे या एक सॉफ्टवेयर वगैरह होगा जिससे आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये इस तरह अनलॉक होगा। जी मिस्टर जीशान, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन। जी जीशान ने हाथ उठा दिया लेकिन क्वेश्चन नहीं है सर। जी नहीं सर, ये पहले से था। ओके ओके गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैन यू प्लीज टेल अस अगेन अबाउट हाउ टू सिक्योर? अच्छा, तो पासवर्ड आप लगाना है मुख्तलिफ़ पासवर्ड्स। एक तो आपने यूज़र पासवर्ड लगाना है कि जो आपका यूज़र अकाउंट हो। उसके अलावा आपने अपने मशीन पे बायोस पासवर्ड लगानी है, बूट ऑप्शन।
अगर आपका लैपटॉप जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू रियल क्विक कि आपके एडमन अगर मुझे इजाज़त दे तो। अच्छा, मैंने मशीन शट डाउन कर दिया, लेट मी पावर डाउन। ये देखिए, ये सपोज़ आपका लैपटॉप है मिस्टर जीशान, ये आप थे जो आप भी बता रहे थे। सर मैं था। अच्छा, व्हाट्स योर गुड नेम? स्टीव खान। ओके मिस्टर हसीब, सपोज दिस इज़ योर लैपटॉप, राइट? तो आप लोगों को पता है कि विंडोज़ में एक ऐसा फाइल भी है जो आप विदाउट पासवर्ड भी ओपन कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप पासवर्ड देते हैं। अगर मैं इसको पासवर्ड ना दूँ और यहाँ पे इस वाली जगह पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखें ये Make your computer easier to use. एग्जैक्टली तो यहाँ पे Windows will सॉरी यहाँ पे वो नरेशन स्टार्ट हो गई। तो ये जो जगह है इसको हम ईज़ ऑफ एक्सेस कहते हैं, और ये आपको पता भी होगा कि ये उन लोगों के लिए है जो डिसेबल हों, जिनको मतलब जिनकी नज़र कमज़ोर हो, तो दे कैन एनेबल Make your computer easier to narrator। use. Windows और will जहाँ पे भी वो माउस रखेगा तो वो कंप्यूटर जो है वो बोलेगा, जो यहाँ का इंटरनल जो व्हाटएवर क्या है। तो ये वाली में सर जी जी सर हम बायोस पे पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, आई विल शो यू। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये मशीन इस जगह की जगह make your computer मैं easy. CMD लेके आऊँ कमांड प्रॉम्प्ट, तो आई कैन एक्सेस टू माई मशीन विदाउट पासवर्ड। तो ये देखें यहाँ पे ये वाला फ़ाइल जो है ये विदाउट पासवर्ड ओपन हो सकता है। अगर सपोज़ मैंने इस मशीन का पासवर्ड रिसेट करना हो तो सिंपली इस मशीन को मैं पावर्ड ऑफ करूँगा, और अगर मेरे पास कोई USB है बूटेबल और उसमें विंडोज़ 10 की फ़ाइल्स मैंने कॉपी कर ली, राइट, और आई वांट टू, तो बायोस पासवर्ड ना लगाने की सज़ा जो है वो ये है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस मशीन पे मैंने एज अ विंडोज़ 10 मतलब मैंने एक बायोस का पासवर्ड नहीं है इस मशीन पे, तो मैंने विंडोज़ 10 का DVD या बूटेबल USB इसके साथ अटैच किया। सपोज़ हसीब के लैपटॉप के साथ मैंने अटैच किया और मैंने बूट फ्रॉम USB या DVD कर दिया, राइट। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये किस तरह? ओके लेट मी, आई थिंक मैंने कुछ स्टेप्स जो है वो मिस कर दिए। सो लेट मी पावर्ड ऑफ दिस मशीन। ओके यस, वो मैंने कनेक्ट नहीं किया था, सो फॉरगिव मी इफ आई एम टेकिंग योर टाइम। It's okay sir, take your time. थैंक यू। सो मैंने इस मशीन पे लॉगिन ले लिया। अच्छा, वैसे जूम में मेरे ख़्याल में 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का वो सीन होता है, तो मेरे ख़्याल में हमारे पास ये इशू नहीं होगा, राइट मिस्टर कासिम आर महानूर? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने वो ओके सर, ओके सर। ओके गुड। अच्छा यार, लेट मी म्यूट यू ताकि मैं, अच्छा मिस्टर ताहिर ने अभी ज्वाइन कर दिया। ताहिर, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, या महानूर या कासिम आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करेगा। ये देखिए, ये हसीब का लैपटॉप है, इस पे मैंने ये देखें रिपेयर योर कंप्यूटर सैम्पली ट्रबल शूट पे मैंने क्लिक कर दिया। आई एम जस्ट नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन, लेकिन forgive me if you are not understanding these options,
बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो पासवर्ड ना देने का बायोस पे अगर आपने पासवर्ड ना डाला हो तो इसकी सज़ा आपको किस तरह मिल सकती है। ये अगर इसके समझाने में सेशन का सारा टाइम निकल जाएगा। हाँ, तो दैट इज़ वाई आई जस्ट डेड द स्टेप्स। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किसी मशीन पे अगर बायोस पासवर्ड ना हो और आपने उस पर लॉगिन लेनी हो तो सिंपली आप एक विंडोज़, जो भी विंडो इंस्टॉल हो उसका फ़ाइल या फिर कोई हायरन बूट, तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, CMD आया, नेट यूज़र, कितने यूज़र हैं, काशिफ यूज़र का पासवर्ड जो है वो मैंने एक न्यू पासवर्ड रखा 123, ओल्ड पासवर्ड मुझे पता भी नहीं है, तो ये 123 इसका न्यू पासवर्ड हो गया। और यहाँ पे ये देखें मैंने वो न्यू पासवर्ड डाला एंड आई एम एबल टू लॉग इन। तो इवन अगर आपके मशीन पे बायोस पासवर्ड ना हो तो ये आपके पास ये वाला इशू हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपका जो मशीन है, अगर बायोस पासवर्ड आप नहीं लगा सकते हैं तो एटलीस्ट जो बूट ऑप्शन है उस पर आप पासवर्ड लगा लें। एक स्टूडेंट ने पूछा कि बायोस पासवर्ड हम किस तरह लगाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर मशीन। अगर आपके पास डेल मशीन है तो मेरे ख़्याल में F2 पे आप बायोस पे जा सकते हैं, राइट, और यहाँ से फिर आप वो चेंजेस सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। या इवन बिफोर चेंजिंग द पासवर्ड आप अपने मशीन का मॉडल लिखें और YouTube में सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा की आपने यूज़ करना है। बाकी इसके अलावा जो है अगर मैं कंट्रोल पैनल पे जाऊं और यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी टैब में आऊँ तो यहाँ पे बिटलॉकर एन्क्रिप्शन, यहाँ से आप अपनी फ़ाइल हिस्ट्री जो है वो उस पर आप जो है वो बैकअप की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपका डेटा किस तरह, तो यहाँ पे आपने एक नेटवर्क पाथ देना होगा, राइट, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ये भी एक बैकअप ऑप्शन है, या मैं तो ख़ुद मैनुअली लेता हूँ अपने लैपटॉप का जो बैकअप है वो मैनुअली हर वीक, आफ्टर 1 वीक में अपने लैपटॉप का सारा डेटा जो है वो किसी दूसरी जगह पे स्टोर करता हूँ, ताकि फिर अगर सपोज़ मेरे लैपटॉप पे अटैक भी हो जाए तो मेरा डेटा जो है वो सिक्योर हो। इसके अलावा विंडोज़ फायरवॉल, मेक श्योर कि आपका जो विंडोज़ फायरवॉल है वो ऑन होना चाहिए। अभी आते हैं फ़िशिंग के बारे में। तो बिफ़ोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक मुझे ये बताएं अच्छा, सिक्योरिंग गूगल क्रोम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, as you are telling all of these about the security, so here are couple of questions in my mind. Can I ask, sir? Yes, please. Firstly, sir, if we remove SSD from this device, which we put on security, so we can access that data or not? Or secondly, sir, if we install a new window to that system, which we put on security, so we can accessible to that data or not? अच्छा, आप बिटलॉकर के बारे में मेरे ख्याल में बता रहे हैं, राइट? Yes sir, sure sir. अच्छा, बिटलॉकर जब मैं इनेबल कर रहा था तो वहाँ पे एक ऑप्शन था कंपेटेबल मूड। तो जब आप कंपेटेबल मूड जो है वो यूज़ करेंगे तो इवन अगर आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे वो इंक्रिप्शन लगाई हो तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो बिटलॉकर वो सपोर्ट करता हो, विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 10, तो यू वुड बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा, आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने पासवर्ड जो है वो देना होगा, विदाउट पासवर्ड यू कैन नॉट। तो आपके मेरे ख्याल में आपके साथ एक इशू आया होगा कि आपने विंडोज़ 8.1 पे बिटलॉकर इनेबल की होगी, फिर आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया होगा एंड देन आपको उस डेटा का एक्सेस नहीं मिल रहा होगा, राइट? यस सर। हाँ, तो इसकी वजह यह है कि ड्यूरिंग बिटलॉकर
जब आप इनेबल करते हैं तो वहाँ आपको ऑप्शन आते हैं, तो मेक श्योर कि आपने वो कंपेटेबल मूड वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है। ये तो मैं अभी हाई लेवल आपको बता रहा हूँ। हाई लेवल मीन कि मैं इन डेप्थ डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम। तो फिर अगर आपने कोई काम करना भी हो तो मेक श्योर कि पहले आप गूगल ओपन कर लें और उस फीचर के बारे में आप स्टडी कर लें, और उसकी जो प्रॉपर स्टेप्स है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अपलोड की होगी। तो सब कुछ जो है वो इंटरनेट पे पड़ा है, बस आपने उसी स्टेप्स को रीड करके फिर आपने वो प्रॉपर उसकी इनेबल जो है वो आपने इनेबल करनी है। राइट? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो एक और बात, अक्सर हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट? तो मेक श्योर कि आपका गूगल क्रोम जो है वो भी सिक्योर हो। कुकीज़ के बारे में किसी को आइडिया है? I have a student here. Let me see if he is on. Sir, kindly explain it, please. Okay. Mr. Adnan Malik, I want you to unmute yourself and can you tell us what is cookies? Yeah, hey, am I audible? Yep, we can hear you. ठीक है, so cookie actually बिस्किट को कहते हैं। That is what British use for cookies, और अमेरिका में उसको बिस्किट कहते हैं, right? Yep. लेकिन टेक्नोलॉजी के टर्म में cookies हमारे पास एज ए काइंड ऑफ डेटा जो कि आप पे स्टोर किया जाता है। जब भी आप में से कितने लोग हैं जो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं तो उनको सामने नजर आता है कि एलो कुकीज़ और नीचे ऑप्शन होता है येस और नो या एडवांस ऑप्शन होता है। तो ऑलमोस्ट आप सब ने देखे होंगे और आपने ओके भी किया होगा। Exactly. तो कुकीज़ बेसिकली सर्टेनली एज ए काइंड ऑफ डेटा जो कि आप पे स्टोर किया जाता है और आपकी आसानी के लिए है। उसकी मैं सबसे आसान एग्जांपल ये देता हूँ कि सपोज कर लीजिए देयर इज़ ए चाइनीज़ वेबसाइट और उसका नाम है abc.com जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में है, लेकिन वो मल्टीपल लैंग्वेज आपको ऑफर करती हैं, मसलन इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक और चाइनीज़। अब जैसे आप साइट पे चले जाते हैं दैट इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज में, ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाता है। लेकिन जब आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं कि मेरी लैंग्वेज जो प्रेफरेंस है वो इंग्लिश कर दें, नेक्स्ट टाइम जब आप उस साइट पे आएंगे तो वो चाइनीज़ में नहीं होगी, वो इंग्लिश में होगी। तो उस साइट को किस तरह पता चला कि ये पर्टिकुलर यूज़र इसको मैंने साइट इंग्लिश में दिखानी है? बिकॉज आपने क्लिक किया था और वही क्लिक से आपका वो डेटा आपके कुकीज़ में स्टोर हो गया था। तो वो कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो आपके ब्राउज़र में स्टोर होते हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो स्टोर होता है। अब आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन हो गए हैं या फेसबुक पे लॉगिन हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो आप ऑलरेडी आपका ब्राउज़र उसमें सेव होता है, आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होती हैं। आपको दोबारा अपना पासवर्ड या ईमेल और पासवर्ड नहीं देना पड़ता। तो फेसबुक को किस तरह पता चल गया कि कौन सा यूज़र आया हुआ है? बिकॉज आपके कुकीज़ में स्टोर हुआ है कि ये पर्टिकुलर बंदा ए, इसका पासवर्ड है बी, ये एक दफ़ा लॉगिन कर गया तो ये दोबारा जब आएगा तो ये ऑलरेडी लॉगिन होगा। तो वो कुकीज़ में आपका डेटा स्टोर हो जाता है। इसी तरह आप किसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स शॉप पे चले जाते हैं और आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है और आप उसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने अभी चेकआउट नहीं किया, आपने खरीदा नहीं, आपने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया हुआ है, राइट? सो नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट ई कॉमर्स पे जाएंगे तो वो ऑलरेडी आपके कार्ट में पड़ा होगा। तो कुकीज़ आपके बेसिकली आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस या आपके ब्राउज़र के मुताबिक रखे जाते हैं, और जब भी उसी पर्टिकुलर आईपी, मैक या पर्टिकुलर जो क्या है ब्राउज़र है उससे जब दोबारा वही साइट एक्सेस होगी तो उसने वो डेटा स्टोर किया होगा इन कुकीज़ फॉर्म और वही प्रेफरेंसेस आपको दिखाएंगे। सो आई होप आई एम क्लियर। इट्स अ वेरी काफ़ी वाइड टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट आई होप के सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट कुकीज़ आर। थैंक यू मिस्टर अदनान। सो इन सिंपल वर्ड्स, कुछ वेबसाइट्स की कुकीज़ जो है वो मतलब अगर स्टोर हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट कुछ वेबसाइट की कुकीज़ अगर हम मतलब वहाँ पे एक्सेप्ट करें तो मे बी जो है वो हमारे लिए फिर वो अच्छा नहीं है। तो फॉर दैट पर्पस आपने कुकीज़ हार्मफुल और यूजफुल फॉर अस व्हेनेवर वी आर पासिंग थ्रू इट? हाँ, तो मैंने वही बताया कि इट डिपेंड्स ऑन वेबसाइट्स। सो पर्सनली अगर फेसबुक की कुकीज़ आप स्टोर करें और मतलब आई वाज टॉकिंग टू समवन, उसने किसी दोस्त का
जो जो फेसबुक की जो कुकीज़ हैं वो उसके ब्राउज़र से कॉपी करके एक प्लगइन्स के थ्रू अपने ब्राउज़र में ऐड की और उसने उसके फेसबुक को एक्सेस मतलब वो इजीली एक्सेस कर दिया विदाउट एनी पासवर्ड, सो बिकॉज ऑफ कुकीज़। सो लेट मी शो यू कि आपने कुकीज़ जो है वो किस तरह आपने डिसेबल करनी है। तो आपने गूगल क्रोम की सेटिंग्स पे जाके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में आना है और यहाँ से आपने कुकीज़ एंड अदर साइट्स के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, सो यू कैन ब्लॉक देम एंड दिस इज़ हाउ यू आर गुड टू गो। अगेन उसके बाद अक्सर आपसे जो है वो पासवर्ड के बारे में भी पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी फेसबुक पे लॉगिन ले ले या किसी और वेबसाइट पे जहाँ पे हम अपने पासवर्ड्स वगैरह देते हैं तो मेक श्योर कि आप जो है वो पासवर्ड वाले ऑप्शन जो है वो भी डिसेबल कर दें। लेट मी सी वेयर द पासवर्ड ऑप्शन। पासवर्ड टैब में जाएं तो ये देखिए ऑटो साइन इन, सो ऑफर टू सेव पासवर्ड ये आप ऑफ़ कर सकते हैं, ये ऑटो साइन इन ऑफ जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने ब्राउज़र की कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस यहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी तो नहीं है, मतलब इफ़ समवन वांट दे कैन स्टिल एक्सेस टू योर मशीन अदर वे या किसी भी तरीके से वो एक्सेस लेगा, लेकिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हमने अपने आप को किस तरह सिक्योर करना है, राइट। एक और बात, अक्सर जो मशीन्स जो है वो ज़्यादातर मतलब फ़िशिंग कीलॉगर के बारे में आपको पता है? सॉरी आई एम मिक्सिंग थिंग्स, सो लेट मी मूव टू अनदर ऑप्शन। कीलॉगर के बारे में किसी को पता है? एनीवन? नो सर, नहीं पता है। अच्छा, व्हाट्स योर गुड नेम? नाम क्या है आपका? माय नेम इज साकिब। मिस्टर साकिब, अगर मैं आपको अपना लैपटॉप दे दूं और आपको कहूं कि चलो अपने फेसबुक से लॉगिन ले लो या अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लो, आपने लॉगिन ले लिया और आप चले गए, आफ्टर सम टाइम मैंने आपका जो पासवर्ड जितने भी आपने की स्ट्रोक की हो, जितने भी आपने लॉगिन या इवन अगर आपने किसी के साथ चैट भी किया हो तो कीलॉगर में आप स्क्रीनशॉट का टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो कीलॉगर बैकएंड पे चलता है आपके मशीन पे और उस पर मैं एक यूज़ कर रहा था, जब एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एक प्रोजेक्ट था तो उसको कीलॉगर पे एक डेमो देनी थी, तो मैंने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया। तो उसमें बाकायदा जब आप चैट भी करते हैं तो आफ्टर 30 सेकंड के बाद वो स्क्रीनशॉट लेता था, तो वो सारी पिक्चर्स वो सेव थी। तो जब वो बंदा चला गया और जितने भी उसने एक्टिविटी की, जिसके साथ उसने बात की, तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो पिक्चर्स फॉर्म में मेरे पास आ गई और मैंने देख लिया कि उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हो। तो मेक श्योर कि कभी भी किसी दूसरे मशीन पे आपने अपना फेसबुक, जीमेल इस तरह के अकाउंट आपने लॉगिन नहीं करनी, राइट, क्योंकि अगर कीलॉगर इंस्टॉल हो तो फिर आप जो है यू आर नॉट सेफ। हाँ, एक और बात है कि फेसबुक पे अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के पासवर्ड के साथ साथ आप अपने जो किसी ने लगाया है कि नहीं, अक्सर हम अगर आप मुझे आपका पासवर्ड मालूम भी हुआ तो जब मैं लॉगिन लूँगा तो मुझे एक कहेगा कि मोबाइल को आपका एक मैसेज गया है कि ये कोड जब आप एंटर करेंगे देन यू वुड बी एबल टू एक्सेस। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़रूरी है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट पे लगाएं। पासवर्ड से तो आप खैर सिक्योर हो गए इसी तरह, लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट लेता है कीलॉगर, जो आपने चैट किया हो, किसी के साथ मैसेजेस पे बात की हो, तो वो डेटा उसके पास जो है वो चला गया। तो मेक श्योर कि आपने किसी दूसरे मशीन पे अपनी पर्सनल जो अकाउंट है वो ओपन नहीं करनी। जी, आई थिंक समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन। जी सर, अगर हमने हाँ जी वन बाय वन अगर हमने मल्टीपल डिवाइसेस पे
लॉगिन लिया हो मगर मेल पे या फेसबुक पे, तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे एक डिवाइस? अच्छा, तो फेसबुक पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ से आप एक्टिविटी पे अभी मैं आई एम सॉरी मैं अपना फेसबुक तो आपके साथ अभी ओपन नहीं कर सकता कि अब सेटिंग्स पे जाऊँ आपको बता दूँ कि कौन कौन सी डिवाइस, लेकिन अगर आप अपनी फेसबुक की सेटिंग में जाएंगे, मुझे वो स्टेप्स याद नहीं है वो ऑप्शन, वहाँ पे आपको पता होगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस एक्टिविटी लॉग में आप देख सकते हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग एनीवन, अगर किसी को आइडिया हो इसके बारे में। गूगल जीमेल में भी ये ऑप्शन है कि जितने भी डिवाइसेस आप, इवन एक और बात, आप में से कौन कौन से एंड्रॉयड यूज़र्स हैं? Yes sir, we are Android. अच्छा, ऑलमोस्ट एवरीवन। अच्छा सही है। ये आपने गूगल फाइंड माई डिवाइस के बारे में किसी को आइडिया है? Yes sir, सुना है। अच्छा, अगर आपने अपने एंड्रॉयड में एज ए जीमेल आईडी लॉगिन ली हो और मुझे आपका ईमेल एड्रेस का पासवर्ड हो मुझे पता चल गया और यहाँ से मैंने लॉगिन लिया, तो इवन मैं आपके मोबाइल का डेटा जो है वो डिलीट कर सकता हूँ किसी को। तब तो ये एक्टिविटीज़ तो ये भी मतलब आप कहेंगे कि मैंने अपने मोबाइल पे तो पासवर्ड लगाया है, मोबाइल हर टाइम मेरे पास था, लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मेरा मोबाइल जो है वो फॉर्मेट हो गया, किसी को मैसेज चला गया, किसी को रिंग गया, तो आपके ईमेल के थ्रू, तो आपने ईमेल पे लॉगिन लिया है मतलब वहाँ पे, तो वो गूगल फाइंड माई डिवाइस। इसी तरह तकरीबन 4 साल पहले मैंने अपने कज़न के लैपटॉप पे अपनी वन ड्राइव जो है वो लॉगिन की और वो चला गया कराची, और मैंने अपने वन ड्राइव पे एज अ ब्राउज़र लॉगिन लिया और वो कराची में बैठा था और मैं यहाँ से उनको बता रहा था कि आपके ई ड्राइव में ये डेटा पड़ा है और आपके एफ ड्राइव में ये डेटा पड़ा है। इवन आई वाज एबल टू डाउनलोड डेटा, तो इसी एक लॉगिन की वजह से। तो आपने ये भी देखना है कि आपने मशीन पे कौन कौन से, अक्सर अभी तो लोग मैच्योर हो गए हैं, लेकिन पहले लोग इस तरह कहते थे कि यार मुझे एक मोस्टली जब आप आईटी के स्टूडेंट हो तो गांव वाले आपको ज़रूर कहेंगे कि पश्तो में मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल आईडी डालो जोड़ा का, राइट। तो दे विल आस्क यू मेरे लिए एक एप्पल आईडी बनाओ या गूगल की आईडी बनाओ, मैंने अपने मोबाइल में लॉगिन लेनी है। तो ये भी मेक श्योर कि आप जितने भी क्रेडेंशियल आपने अपने फ़ोन में डाले हैं उसका एक्सेस किसी और के पास ना हो, तो ये भी एक सिक्योरिटी है। सो गाइस, लेट मी मूव टू फिशिंग टॉपिक। फ़िशिंग के बारे में किसी को पता है? इट्स नॉट फिशिंग, एफ़ वाला फिशिंग नहीं है, ये बेसिकली PHISHING। एनीवन कैन टेल मी, आई मीन किसी को आइडिया है फिशिंग के बारे में? ये सर वो पेक साइट होता है। अच्छा, एनी अदर वन? जी बोले, अनम्यूट योर सेल्फ। वी कैन स्टिल कंटिन्यू फॉर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स आई विल बी ओके। मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट्स में मैं कवर कर लूँ, क्योंकि हमने 15 मिनट्स लेट स्टार्ट किया था। जी, फिशिंग के बारे में किसी को आइडिया है? अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि आप लोग लैपटॉप से लॉगिन है या मोबाइल फ़ोन से लॉगिन है? मोबाइल फ़ोन से सर हम लॉगिन है सर। माशाल्लाह। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन से, कुछ लैपटॉप से सर। अच्छा, मैं हम तो ड्राइव कर रहे तो अच्छा मोबाइल से लॉगिन है। सही है। आई एम गोइंग टू सेंड यू अ लिंक। ये लिंक अपने मोबाइल में ओपन कर लें और ये मैं यहाँ पे भी ओपन करता हूँ। सही है, नज़र आ रहा है आपको? यस सर। सर हमने लिंक लिंक ओपन किया आपने? यस सर, लिंक ओपन किया सर। ओके, मेरे साथ साथ चले। यहाँ पे एक क्विज़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया ABC, सपोज़ मेरा नाम ABC है और ये जी सर ओपन कर लिया। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर ये देखें, ये मुझे किसी ने ईमेल भेजा है,
यहाँ पे अभी हमने चेक करना है। सर प्लीज हमें पहले समझा, ऐसा ना हो कि हमारा डेटा भी आपके पास सर, ऐसा ना हो कि हमारा डेटा भी नहीं आपके नहीं पास नहीं, आए। आई एम नॉट अ हैकर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवेयर यू गाइस, टू गिव यू नॉलेज कि आप लोगों ने किस तरह सिक्योर करना है। अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूँ कि फ़िशिंग के बारे में। ये देखिए, मुझे एक ईमेल आया है लूक जॉनसन से, और वो मुझे कह रहा है कि ये लिंक ओपन कर लो, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अभी मुझे नहीं पता कि ये फ़िशिंग अटैक है या ये लेजिटिमेट है, मतलब ये सही है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखना है luke.johnson 8000 ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये फ़िशिंग है या सही है। ओके रईस खान, कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा, I think It it's looks like जी जी, legitimate. अच्छा ये हम डोमेन से देख सकते हैं, अगर डोमेन XYZ ऐसा करके है तो ये कंफर्म फिशिंग है। अच्छा, तो अगर आपने डोमेन XYZ इस तरह कुछ नहीं है तो एज अ जेन्युइन है तो वो ठीक है। अच्छा, आपने किस तरह देखना है, देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो नीचे जो लेफ़्ट बॉटम पे आप देख लें तो drive-google.com नज़र आ रहा है आपको नीचे मेरा स्क्रीन? जी नजर आ रहा है। उसमें क्या लिखा है? drive-google.com। तो google.com, हाँ, तो drive डैश नहीं है कभी, drive.google.com है। तो इट मीन्स कि ये फ़िशिंग है। तो यहाँ पे मैंने फ़िशिंग लिया तो यहाँ मुझे बता रहा है कि करेक्ट, दिस इज़ अ फ़िशिंग ईमेल यू हैव स्पॉटेड। और किस तरह? तो यहाँ पे शो मी जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पे माउस क्लिक करें तो यहाँ पे drive-google.com विच इज़ नॉट अ वैलिड साइट। तो इसी तरह आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये फ़िशिंग है या फिर सही ईमेल है। अभी अगेन ये एक ईमेल आया है मुझे noreply@efax.com से। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इट्स आल्सो अ फ़िशिंग, क्योंकि जो सेंडर ईमेल है और जो लिंक का जो डोमेन है वो दोनों डिफरेंट है, राइट। तो इसी तरह आपने फिर इस लिंक को आपने क्लिक नहीं करना। अगर आपने इस पर क्लिक किया तो यू आर डन। अच्छा, वैसे हम ये फ़िशिंग इस पे आप ख़ुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। लेकिन बिफोर दैट आपको URL शॉर्टनर का पता है? URL शॉर्टनर के बारे में? नो सर। अच्छा, सपोज़ मेरे पास, ओके, थैंक यू रईस, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। अच्छा, URL शॉर्टनर बेसिकली ये bitly.com फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ ये वाला। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। ओके गुड। ये देखें, ये मैं आपको आउटकम सोशल वेलफेयर सोसाइटी का पेज जो है इसका लिंक मैं भेज रहा हूँ। तो जब ये लिंक मैं आपको ईमेल में भेजूँगा तो ये एक बहुत बड़ा लिंक होगा। तो अगर यहाँ पे मैं इसको, आई थिंक आई नीड टू लॉग इन, बट लेट मी सी। सर स्क्रॉल डाउन करें, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दें। ओके, यप। तो ये देखिए शॉर्ट ऑन अगर मैंने कर दिया तो ये देखिए ये साइड हो गया। तो अगर मैं आप लोगों को चैट में ये भेज दूँ, सही है, तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कौन सा लिंक है। ये अगर आप इस पर माउस भी वो माउस ओवर भी करेंगे तो आपको पता नहीं होगा। रिसेंटली मुझे एक ईमेल आया है, लेट मी ओपन दैट ईमेल। सही है। सो मुझे ये एक ईमेल आया है और यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि कैन यू रिमेंबर दिस फ़ोटो। अक्सर हम किस तरह जो है वो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि
अभी अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो नीचे अगर आप देखें ये स्टार्ट मेन्यू के साथ यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। नज़र आ रहे हैं आपको? अच्छा, तो अभी मुझे ये आइडिया नहीं है कि इज़ दिस अ फिशिंग ईमेल या फिर ये सही ईमेल है, क्योंकि इसने URL शार्टनर यूज़ किया है और इसी के थ्रू इसने जो है वो मुझे वो लिंक भेजी है। तो अगर आपको आइडिया ना हो तो आपने फिर क्या करना है, आपने इस शार्टन लिंक को आपने ओपन करना है ब्राउज़र में। जब आप इसको पेस्ट करेंगे और प्लस का निशान आप जो है वो लास्ट में आपने लगाना है। तो इवन अगर ये कोई ख़तरनाक लिंक भी है तो आपको लिंक ओपन नहीं होगा, ये आपको उधर लेके चलेगा। तो जब आप प्लस निशान डालेंगे तो यहाँ पे वो ओरिजिनल जो रिक्वेस्ट है hackertyper.com, तो ये देखें वो जो ओरिजिनल बैकएंड पे इस लिंक के बैकएंड पे जो लिंक था वो ये वाला था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फिशिंग है या फिर कोई सही ईमेल है। तो मेक श्योर कि इस तरह का कोई शॉर्ट लिंक आपको कोई भेजे तो आपने ब्राउज़र में डायरेक्ट ओपन नहीं करना, लास्ट में आपने प्लस जो है वो डाल के फिर आपको आइडिया होगा कि ये कौन सा है। सो डू यू वांट मी टू सेंड यू दिस लिंक? वैसे इट्स नॉट अ हैकर लिंक, जस्ट अ वेबसाइट, यू कैन चेक इट। ओके, तो चलें अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसको। वी हैव ओनली 2 minutes रिमेनिंग। ओके, थैंक यू मिस्टर सजाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये फिशिंग है या लेजिटिमेट है? फिशिंग है सर। ओके, गुड। ये देखें, करेक्ट, दिस इज़ अ फिशिंग ईमेल। और अगर आप इस पे शो मी करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे जो डिफरेंट डोमेन था, विच इज़ वाई दिस इज़ फिशिंग। ओके, नाउ टाइम फॉर अ ट्रिप डाउन मेमोरी। तो अक्सर हमें मतलब हम जब हमारा कोई दोस्त होता है वो हमें ईमेल करता है कि ये देखें हम तुम्हारा कोई, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं तो उनको इमोशनली इसी तरह लोग ब्लैकमेल करते हैं। सपोज़ एक फ़ीमेल है, वो चली गई किसी इवेंट में और किसी दूसरे को आइडिया होगा कि ये तो इवेंट में गई थी और फॉर सम मतलब किसी तरीके से उसने उसकी ईमेल इंफॉर्मेशन या उसको मिल गया फेसबुक की आईडी और वहाँ पे उसको एक लिंक भेज दिया कि ये मैंने आपकी एक फ़ोटो ली थी, जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना फ़ोटो जो है वो देख सकती है। तो वो बिना सोचे उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करेगी एंड बैकएंड पे वो जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो मोस्टली जो है विक्टिम्स जो होती है वो हमारे माशरे में ज़्यादातर फीमेल ही होती हैं। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से मुझे जो ईमेल आया है वो जीमेल से आया है, लेकिन जो बैकएंड पे अगर आप देखें तो वो sitez.net जो नीचे लिंक शो हो रहा है। तो इट मीन्स दिस इज़ आल्सो अ फिशिंग। सो आई विल जस्ट क्लिक कंसिडर इट फिशिंग, और ये भी एक फिशिंग ईमेल ही था, राइट। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं द लिंक URL एक्चुअली पॉइंट्स टू दिस नॉट गूगल ड्राइव विच इज़ अ फिशिंग। तो आपने मेक श्योर कि उसी लिंक पे आपने क्लिक करना है। तो जब भी आपको ईमेल आ जाए तो आपने देखना है। अच्छा, लुक्स लाइक यू आर आउट ऑफ स्टोरेज। तो ये सिर्फ 8 क्वेश्चन है, हम ये करके फिर सेशन को मैं वाइंड अप करता हूँ अपने एंड से। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आई विल स्टे फॉर 5 minutes फॉर यू गाइज। तो dropboxmail.com, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, यस प्लीज सर, एक जनरल क्वेश्चन है सर। हाँ प्लीज जी, बोले। अच्छा, इफ यू आर टॉकिंग यू आर लिसनिंग सर। जी बिल्कुल सर। ये एक्चुअली बाज़ दफ़ा ये हाइबरनेशन मोड में जाता है हमारा पीसी सर। सो ये हाइबरनेशन क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
वो तो आप चेंज कर सकते हैं जो मशीन का, वो बेसिकली एक तो मैं आपको बता दूं इसी से रिलेटेड कि अक्सर सपोज़ मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं किसी काम की वजह से मतलब पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आपने अपना मशीन जो है वो लॉक करना है। तो यू मस्ट नो कि किस तरह हमने लॉक करना है। विंडोज़ की प्लस एल बटन आपने यूज़ करना है। तो जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपका मशीन लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह हाइबरनेशन में इसलिए जाता है मशीन कि आप काम नहीं कर रहे, मतलब आप स्लीप आइडल मोड में है, तो डेफिनेटली आपका मशीन जो है वो स्लीपिंग मोड में जाएगा। इफ़ यू डोंट वांट तो आप कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ से फिर वो आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? आई थिंक पावर ऑप्शन से यू कैन चेंज योर सेटिंग कि कितना टाइम आपने लगाना है, इट डिपेंड्स। तो यहाँ से आप वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब ये गुड है क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो यूज़ नहीं होती। अगर आपका मशीन जा रहा है इसी मोड में तो ये हाँ ओके। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वो लिंक भेजा है फिशिंग का क्विज का, तो फिर आप उस पर प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। URL शार्टनर के भी बारे में भी मैंने डिस्कस किया। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन वगैरह सर हो। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास जी सर मेरे पास कोर i6 जी सर मेरे पास कोर i6 लैपटॉप है। तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है कि सर इससे ईमेल नहीं होता है। जब मैं ईमेल को ऑन कर तो रहा था कि रिमूव योर कुकीज़, इस तरह सर आता है, ईमेल नहीं होता सर, क्या रीज़न है सर? तो आप एक काम करें, एक सॉफ्टवेयर है CCleaner सॉफ्टवेयर, राइट? तो वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें ताकि जितनी भी आपकी वो प्रीवियस जितनी भी इंफॉर्मेशन है ब्राउज़र की वो जो है वो ख़त्म हो जाए और बाकी न्यू डेटा जो है वो वहाँ पे जो है वो तो ये आप कर सकते हैं इसको CCleaner के थ्रू। या फिर डिस्क क्लीनअप आप किस तरह करेंगे? ये आपका मशीन है तो यहाँ पे सी पे प्रॉपर्टीज़ में जाएं, डिस्क क्लीनअप, और यहाँ से भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ इस तरह का डेटा पड़ा होगा जो कि शायद आपने पासवर्ड चेंज किया होगा या कोई और एक्टिविटी की होगी, तो इस वजह से। ओके यस जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मिस्टर नदीम शिनवारी। जी थैंक यू सर। सर थैंक यू, मेहरबानी। ओके सो एनीथिंग एल्स? मेरी तरफ से तो सेशन जो है मैंने क्लोज कर दिया। थैंक यू मिस्टर सजाद, मिस्टर इबाद। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज मिस्टर एतजाज। Thank you, sir. Sir, if we are using someone else's device, sir, so how we know that this person is using keylogger or not, sir? Very good we question. Can trace. Very good question. Basically, there are software anti-keylogger. तो वो आपको डिटेक्ट करके देगा कि इस मशीन पे कीलॉगर है या नहीं। सो जिस तरह वायरस एंटीवायरस, तो इस तरह कीलॉगर एंटी कीलॉगर। सो अभी मुझसे ये ना पूछो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये आपने ख़ुद जो है वो देख के इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके, कुछ जो है वो डेमो होते हैं 3 और 4 डेज़ के लिए, और कुछ की आपने लाइसेंस की जो है पेमेंट वगैरह करनी होती है। बाकी एक ट्रेनिंग है, मैंने ख़ुद इसकी सर्टिफिकेशन भी की है, सर्टिफाइड सिक्योर इन यूज़र कंप्यूटर यूज़र, CSU के नाम से एक ट्रेनिंग भी है। तो उसकी एक पेपर भी है, फिर आप उसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो जब आप ये ट्रेनिंग करेंगे और आप तो ये जो आप एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं।
अपने मोबाइल फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं, अपने ट्विटर अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो और मैंने स्टार्ट में बताया भी कि इवन अभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है लोग तो वो कर सकते हैं। तो यू कैन कांटेक्ट मी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय डिटेल्स। शुरू में मानूर ने भी शेयर की, और ये these are my information, you can meet me, right? So these are my information. Any question? Yes sir, sure sir. Sir, thanks for your precious time sir. No problem. सर एक चीज की अभी क्लियरेंस नहीं हुई कि जो की लॉगर है वो हमें पता नहीं चला कि कैसे उस बंदे के सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं। हमने टेम्परेरी उसको लिया और हमने उसको यूज़ किया, लेट से हमने अपना फेसबुक या अपनी ईमेल फॉर द टाइम बीइंग यूज़ की, वो हमारे सामने बैठा हुआ है, तो हम कैसे उसके सिस्टम पे जाके एंटी की लॉगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने किसी मशीन पे जो है वो अपनी पर्सनल मतलब लॉगिन नहीं लेना। अगर आपने लेना भी है तो मेक श्योर कि आपका जो अकाउंट है, सपोज़ आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करना चाहें तो एटलीस्ट आपको मैसेज आए कि कोई और जो है उस पर ट्राई कर रहा हूँ। और मतलब आप ये इट्स योर राइट्स कि मतलब आप चेक करना चाहते हैं कि मतलब कि ये मशीन सिक्योर है कि नहीं, तो आप उनको बता सकते हैं डेफिनेटली कि अगर वो इस तरह मतलब वो कर रहा है तो इट्स योर राइट्स कि आप उसको बताएं कि आप की अगर यूज़ कर रहे हैं, मैं आई वांट टू मेक श्योर कि आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो यू कैन चेक इट। वैसे अगर आपने देखा होगा, I want to add, sir. जी जी, यस प्लीज़ मिस्टर अदनान। अच्छा, जब भी आपने किसी दूसरी बंदे से डिवाइस लेके या पब्लिक एरिया है जैसे कि नेट कैफेज होती हैं, तो वहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करें, सो डोंट